Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBSE Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class separately. So please go to my channel, click on the playlist and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is class 7 chapter 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज. So संघर्ष means the struggle. So because of the struggle, I became tunuk mizaj. Tunuk mizaj means short-tempered, who will get angry very quickly. Dhanraj. So who is this Dhanraj? Dhanraj Pillai is a Indian hockey player. So he is saying because I had to struggle a lot in my childhood and in my whole life. Because of that, I became short-tempered. So now let's see. So this is an interview. This is an interview between a lady and the player Dhanraj. हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था. साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू. इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है. संपादित मीन्स summary or edited version. When hockey player Dhanraj Pillai turned 35, so his interview was taken by a lady named Vinita Pandey. इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है. So an edited version or summarized version of this interview is given here. विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है. उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए. So the lady is asking from the narrow streets of Pune to Hiranandani Povai complex in Mumbai. Your journey would have been very long and painful. So tell me something about that journey. धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा. हम बहुत गरीब थे. मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे. So Dhanraj is saying my childhood was full of problems. We were very poor. Both my elder brother used to play hockey. उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक हुआ. So because of them only I started liking hockey. पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी. But however I did not even have the money to buy a hockey stick. इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था. Therefore, I used to borrow hockey sticks from my friends in order to play. वह मुझे तभी मिलती जब वह खेल चुके होते थे. So, I would only get the stick when they would have finished playing. इसलिए इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था. So for this I have to wait for my turn with a great patience. मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया. So I got my first hockey stick when my elder brother was selected for an Indian hockey camp. उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी. So he gave me his old stick. वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी. So it was not brand new but still it was very dear to me because that was my own. मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली. So I played my junior national hockey in 1985 in मणिपुर. तब मैं सिर्फ 16 साल का था. देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा. So at that time I was only 16 years old. I was very lean and thin and my face looked like a very small kid. अपनी दुबली पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था. Despite my very lean body structure, I was so dominant or I would look so confident that nobody would try to fight with me. मैं बहुत जुआरू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी. So I was very quarrelsome or I was very short tempered or quarrelsome who will quarrel in a snap of fingers. So both on and off the field I was very quarrelsome.
1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया. So in the year 1986, I was put in the senior team of hockey and then I moved to Mumbai taking all my belongings. उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला. हमने खूब धूम मचाई. So in that year, me and my elder brother Ramesh played the best game in the Mumbai league. We played really well. इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया. सो बिकॉज दे प्लेड रियली वेल इन द मुंबई लीग, बिकॉज ऑफ दैट एन एक्सपेक्टेशन अरोज in me that I would definitely get a call from the national camp for the Olympics 1988, but no call came. मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था. My name was also not even there in the list of 57 players. बड़ी मायूसी हुई. So I was very disappointed. मगर एक साल बाद ही आल्विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया. बट आफ्टर ए ईयर और ईयर लेटर आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द आल्विन एशिया कप कैंप. तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स माई करियर स्टार्टेड ग्रोइंग. दैट इज आई हैव नेवर लुक्ड बैक. विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? So the interviewer is asking, how was your student life? What kind of memories you have of your school days? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड़ी था. So धनराज is saying, I was very bad in academics. किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था. Somehow I reached the 10th standard, but after that the matter was very difficult. एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती. सो लेट मी से वन थिंग, इफ़ आई वॉज नॉट अ हॉकी प्लेयर और आई वुड नॉट हैव बिकम अ हॉकी प्लेयर, आई प्रॉबेबली वुड नॉट हैव गॉट अ जॉब ऑफ अ प्यून. सो आई वॉज दैट बैड इन एकेडमिक्स. आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ. So today I am not a bachelor of science or arts, but I can proudly say that I am a bachelor of hockey. हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं. And so he started laughing and he's cracking a joke that, so if you're looking for my marriage or looking for my wedding, you can also call me master of hockey. आप विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं. सो विनीता इज आस्किंग, वाई आर यू सो शॉर्ट टेम्पर्ड एंड समटाइम्स यू गेट एग्रेसिव टू. दैट मीन्स यू स्टार्टेड बीटिंग ऑल्सो. धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है. सो धनराज इज सेइंग दिस कनेक्शन इज रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड. मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था. सो आई ऑलवेज फेल्ट वेरी इनसिक्योर. मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा था. सो आई हैव सीन विथ माई ओन आइज दैट हाउ मच माई मदर हैड टू स्ट्रगल फॉर आवर अपब्रिंगिंग. मेरे तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं. सो देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड माई टेम्पर. लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ. बट आई एम अ मैन विदाउट कंट्रोल ऑन माई वर्ड्स. मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है. सो वॉट एवर कम्स टू माई माइंड आई से डायरेक्टली एंड देन लेटर आई हैव टू रिग्रेट लाइक मैनी टाइम्स वाई आई सेड दैट एंड ऑल. मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता. आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर. दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है. सो आई ऑल्सो एन्जॉय एनकरेजिंग अदर पीपल टू फाइट. मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए झूंझना पड़ा जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया. सो आई हैड टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरी बिग और स्मॉल थिंग्स टू गेट ईच एंड एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग्स इन माई लाइफ. सो बिकॉज ऑफ दैट आई बिकेम वेरी इरिटेटेड. साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ. सो एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल पर्सन. भावुक मीन्स इमोशनल पर्सन. मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता. आई कैनॉट सी एनी वन इन ट्रबल.
मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली वेरी मच। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। सो आई डोंट फील ashamed एट ऑल टू apologize फॉर माई मिस्टेक्स। आपके परिवार, विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? सो विनीता इज आस्किंग व्हाट डज योर फैमिली मीन टू यू? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। सो धनराज सेइंग आई गॉट द मोस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम माई मदर। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। सो शी हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू पुट गुड वैल्यूज इन टू ऑल ऑफ अस, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल ऑफ अस। शी हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू पुट गुड वैल्यूज इन टू अस। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। सो आई एम वेरी क्लोज टू हर। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। Whether I'm in India or abroad, I talk to my mother every night before going to bed or before sleeping. मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। So my mother has taught me how to handle my success with modesty or with politely. I should not get show off or something. I should handle it very carefully. मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। And my elder sister-in-law Kavita is also like a mother to me and she has also been an inspiration for me. विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? So Vinita is asking when did you first play hockey on artificial grass, that is astroturf. धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। सो धनराज सेइंग आई फर्स्ट सॉ द आर्टिफिशियल ग्रास व्हेन आई वेंट टू न्यू दिल्ली इन 1988 टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल गेम्स। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। So I still remember how Somaiya and Joaquim Carvalho took me to a corner and they were telling me tricks to play on artificial grass. और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुककर उस मैदान को छू रहा था। So while they were busy telling me how tips and tricks how to play on artificial grass, I was actually leaning and trying to touch the ground all the time. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। सो आई कुड नॉट बिलीव दैट साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड सो मच दैट दे कैन इवन ग्रो आर्टिफिशियल ग्रास। हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? सो every young man dreams that he want a car. So when did you get your first car? धनराज, मेरी कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। सो माई फर्स्ट कार वॉज अ सेकेंड हैंड आर्माडा विच वॉज गिवन टू मी बाई माई अर्लियर एम्प्लॉयर। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। सो बाई देन आई हैड बिकम अ वेरी फेमस और वेरी वेल नोन प्लेयर। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फेम और पॉपुलैरिटी ब्रिंग्स मनी विद इट। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में बसों में सफ़र करता था। आई स्टिल यूज टू ट्रैवल इन मुंबईज लोकल ट्रेन्स एंड बसेस बिकॉज आई हैड नॉट गॉट दैट मच मनी, ओनली आई वॉज जस्ट फेमस। क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड अ टैक्सी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। सो आई रिमेंबर वंस अ फोटोग्राफर took my picture at a crowded railway station, and the next morning a printed news came in the newspaper that hockey star Pillai still travels in Mumbai local trains. उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए।
So on that day I realized that I have become very famous and I should avoid traveling on this local trains. लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, बट वॉट कुड आई हैव डन। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता। वॉट एवर लिटिल आई अर्नड आई हैड टू रन माई फैमिली। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। So gradually I deposited saved money and took care of the sister's marriage expenses and started sending money to my mother in Pune every month. आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था। So today I have a Ford Icon car which I bought in 2000. मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। So but the Ford Icon car is not a gift given by some corporate house, but that car I purchased that car with my hard earned money. विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? So Vinita is asking, what does really success mean to you? You have given so much to hockey. What did you get instead? धनराज, कुछ पैसे कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। So I've received a little money in the form of prize, but today in comparison to what the player get now, nothing was received in those times. मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। सो माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू रिमूव द financial problems और financial constraints that was in my family and give them a better life. विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। So in 1994, I bought a small 2-bedroom flat in Bhau Patel Road, Pune, from the income earned by playing in abroad. घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। The house was very small, but it was enough for all of us. 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। So in 1999, the Maharashtra government gave me a flat in Powai. So it was such a house that I could never afford to buy that in my life. विनीता, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? So she's asking, how does it feel to sit on the same platform with celebrities? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब वह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। So I felt really good because when we met the president, we realized how special we are. It is hockey only which gave me reputation everywhere. So that is the interview of the Dhanraj Pillai. So he was a famous hockey player, but it was very tough for him in the childhood and initial days. He could not get the success and he was coming from a very poor family who had to struggle a lot in order to reach in such a position. And even after gaining the fame and popularity, still he was struggling to get the money, and still he could only afford 2 BHK room in Pune. But it was sufficient for him and his family, and he was very short tempered and he would sometimes become very aggressive. So why he was so? Because he had to struggle a lot in his childhood and in his whole life. He had to struggle a lot. So because of those struggles, his character changed and he started feeling irritated soon, because every time he'll think, yeah, this time I'll get success, but that was not provided to him in his life. So because of that, he became his character began to change and he became irritated, and that resulted in becoming, he was very short tempered. So that's all. So what is written here? धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को, दिस ऑरेंज बॉक्स, व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय में भर देता है, तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग है और कई भाव।
उसने ठेठ ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का यात्रा तय की है. So she just the lady who took the interview, Vinita Pandey, just underlined the personality of Dhanraj Pillai by saying a few lines about him. Like वह आपको कभी he sometimes makes you laugh, sometimes makes you cry, and sometimes विस्मय means surprise. Sometimes he surprises us, and even sometimes he fills us with anger. Why he did all those things like that. उसके व्यक्तित्व में कई रंग है. सो हिज पर्सनैलिटी हैज़ मैनी कलर्स एंड मैनी इमोशंस. कई भाव मीन्स मैनी इमोशंस. ही हैज़ सेट आउट ऑन अ जर्नी टू राइज फ्रॉम अ लैंड टू बिकम अ स्टार इन द स्काई. So that's it. I hope you understood the chapter. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.